Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. Today, as you can see, we are going to start a new chapter, squares and squares root. So, in this chapter, we are going to learn what we mean by square and square roots. So, let's start. So first see what we mean by square. ये जो टर्म है स्क्वायर, इससे हम क्या समझते हैं? तो स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है if a number is multiplied by itself, the product of obtained is called the square of that number. क्या बोल रहा है? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? जब हम उस नंबर को उसी खुद ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं. लेट्स सी विद दिस एग्जांपल. सो सिंस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 36. क्या कर रहे हैं हमने लिया एक नंबर 6 और हम 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम जानते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 36. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही मिलेगा. सो वी विल से दैट 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 एंड वी विल राइट इट एज 6 raised to the power 2 will be equals to 36. सो स्क्वायर की डेफिनेशन ही ये कहती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जब हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो कहलाता है उस नंबर का स्क्वायर. और उसे लिखते कैसे हैं? ये जो स्क्वायर नंबर है इसे हम उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा 2 बनाकर लिख देते हैं. तो अगर हमने लिखा है 6 to the power 2, इसका मतलब है कि हम इस 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इस पावर 2 का मतलब ये है कि 6 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये चीज़ नहीं होती है. 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स. सो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ चुके हैं. तो 2 जो है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा और इस एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है कि ये जो बेस है ये इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. हम उसको उतनी बार टर्म्स में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं. सो 6 to the power 2 will be equals to 36. So we will say 36 is the square of 6. One more example. So here I have taken the value is in decimal. So 0.09 is the square of 0.3. You can check, if you multiply 0.3 by 0.3 you will get 0.09. So this is how we are saying that 0.09 is the square of 0.3 and so on. इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. बस हमें क्या करना होगा, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. और यहाँ हम इसको नोट डाउन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 0.3 2 in the power will be equals to 0.09. मतलब 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09. Understood? So this is what we mean by square of any number. So by performing or to find the square of any number, we need to keep some points in our mind, which are as 3 raised to the power 9. I told you we are going to write this thing when we do the square of any number. तो अब हम इसे रीड कैसे करते हैं? We read it as 3 raised to the power 2 is 9. So this thing 3 as a base and 2 as the exponent is
readable as 3 raised to the power, which will be equals to 9. So 3 raised to the power 2 is 9, or we can say 3 raised to the power 2 is 9. So this is how we read this type of statement. Next point to keep in mind, that squares of even number are always even. So we all know what are even numbers, right? So when we find the square of any even number, we can see that the square will also be the even number. Let's see. So we are taking this square number here as 4, and we all know that 4 is an even number. So square of 4 will be equals to 4 multiplied by 4, which is 16. So you can see 16 is an even number also. So square of an even number will be even number only. One more example you can see here, 8 to the power 2. Like square of 8 will be equals to 64, and we can see 8 is the even number and 64 is also the even number. Again 12 raised to the power 2. So 12 is an even number, and after finding the square of 12, we got the value as 144, and we know that 144 is also an even number. So we can apply this statement directly, or we can use this result directly, that square of any even number will be even number only. Now what about the odd numbers? So squares of odd numbers are always odd. Likewise the square of even number will be even. So we can say the square of odd numbers will be odd numbers only. When we will find the square of odd number, we will get the square as odd number only. You can see 3 is the odd number here. So जब हम 3 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3 multiplied by 3, which will be equals to 9, and 9 is an odd number. Again यहाँ पर हमने लिया है 7. 7 एक odd number है. 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आएगा 49, as 7 multiplied by 7 is equals to 49 only, and 49 is also an odd number. So we can say squares of odd number is always odd. You can check it with any odd number or any even number. Next point. So it is written here, whether the number is negative or positive, the square will be always be positive. नंबर हमारा कैसा भी हो, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. स्क्वायर तो हम सभी का फाइंड कर सकते हैं, इंटीजर्स का भी फाइंड कर सकते हैं. अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन अगर इंटीजर या नंबर हमारा नेगेटिव है, तभी भी वो जो नंबर है वो कन्वर्ट होके आएगा पॉजिटिव में. कैसे? So let's check. 7 पॉजिटिव नंबर है, we all know that. जब हम 7 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 49. यहाँ तो चीज़ें सेम ही थी, कुछ अलग नहीं था, पॉजिटिव नंबर ओनली. अब हम नेगेटिव के साथ वर्क करके देखते हैं. अब हमने 7 की जगह ले लिया -7. अब -7 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, -7 multiplied by -7, so we are multiplying here two integers having equal or same sign. So we know that when we multiply two integers having same sign, we'll only multiply their absolute values. So we are getting the answer is 49 only. So यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हमने नेगेटिव नंबर लिया है और हम उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव ही मिल रही है. माइनस माइनस कन्वर्ट कैसे हुआ पॉजिटिव में,
ये हम अपनी पुरानी क्लासेस से जानते हैं, राइट? Similarly, you can find or you can check the square of -6 will be equals to 36 and square of 6 is also equals to 36. -6 का भी स्क्वायर 36 ही आएगा और पॉजिटिव 6 का भी स्क्वायर 36 ही आएगा. सिमिलरली 9 और -9 दोनों का ही स्क्वायर हमें 81 ही मिलेगा. तो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर जो मिलेगा वो एट द एंड हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. Since the square of every number is positive, the square root of a positive number can be obtained, but the square root of the negative number is not possible. So here we are having a new term which is square root. So we will discuss this later what we mean by square root. So here let's understand what is saying here. यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमने देखा कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है. अब अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव नंबर का हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन वो स्क्वायर रूट अगर हम नेगेटिव नंबर का निकालें तो समहाउ वो कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है कि वो जो नंबर है वो नेगेटिव था या पॉजिटिव. इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो till now we have seen how to find the square of any number and we have used this term square root in the previous slide. Now how to find the square root of any number? कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं. So it is written here as the square root of a given number y is the number whose square is y. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जिस नंबर का स्क्वायर वो नंबर हो जो रूट के अंदर लिखा है. इसको नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आएगा. उससे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट को डिनोट कैसे करते हैं. स्क्वायर कैसे डिनोट कर रहे थे हम बेस के ऊपर एक एक्सपोनेंट का यूज कर रहे थे. Now how to denote the square root? So to denote the square root we are going to use this symbol. So how to write the number in this symbol? So we are going to write the number under this symbol, like we will read square root of y, under root y also. इस मतलब इस सिंबल को हम जो यूज़ करते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा हमें स्मॉल आर के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. और जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा था, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें फाइंड करना होगा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें वो वैल्यू मिले जो इस रूट के अंदर लिखी हुई है. So here I am using the number. So I have taken the number as 81. इसे रूट में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट 81. इसका क्या मतलब होगा, अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 81 होता है. तो किस नंबर का स्क्वायर 81 होता है, 9, राइट. जब हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो होता है 81. तो ये जो रूट में 81 लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल्स टू 9 ओनली. मतलब रूट में जो नंबर है हमें वो बताना होता है कि वो जो नंबर लिखा है वो किस नंबर का स्क्वायर होता है. लेट्स चेक वन मोर एग्जाम्पल. सो हियर आई हैव टेकन अ डेसिमल नंबर, so 1.44. So square root of 1.44 will be equals to what? We know that 1.44 is the square of 1.2. 1.44 क्योंकि
1.2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2 होगा। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बस हमें चेक करना है कि वो जो वैल्यू लिखी है रूट के अंदर वो किस नंबर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम ये फाइंड करते हैं, वो हम आगे जाके अभी सीखेंगे। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट स्क्वायर। नाउ व्हाट वी मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ लिया, स्क्वायर रूट भी पढ़ लिया, ये नया टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, चलिए देखते हैं। A number whose square exact square root can be obtained is called a perfect square। क्या लिखा है, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने में सक्सेसफुल होते हैं या हम उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो हम कहते हैं वो जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि हम सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट एज इन फाइंड नहीं कर सकते। हम 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन 17 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं 17 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर हमने जैसे एग्जाम्पल्स लिए हैं 25, 81, 1.21, 9/16 also. We learn how to find the square and square root of fractions, etc. are perfect squares. Why? Because we know that square root of 25 is 5, or we can say the square of 5 is 25. 25 किसी का तो स्क्वायर होता है और हम जानते हैं वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 81 भी किसी का स्क्वायर होता है, 9 का होता है, इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, तो हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अब to find out whether a given number is a perfect square or not, express the number as the product of its prime factors। अब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हम एट अ टाइम देख के कई बार नहीं बता सकते कि ये किसी का स्क्वायर है भी या नहीं, क्योंकि अगर हम बड़ा नंबर ले लेंगे तो हम शायद नहीं जानते होंगे कि ये नंबर किसी का स्क्वायर होता भी है या नहीं। तो हम फाइंड करने के लिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम फाइंड करते हैं, उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। So if the number is a perfect square, you would able to group all the factors in pairs in such a way that both the factors in each pair are equal। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम उन प्राइम फैक्टर्स को पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम उनके पेयर्स इक्वली बना सकते हैं। अगर हम पेयर नहीं बना पा रहे हैं मतलब वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें फाइंड करना है, हमें चेक करना है कि 144 और 180 जो है वो प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। कैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो हम जानते हैं 144 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 2, 2, 2, 3 एंड 3। अब हम चेक करते हैं कि हम इनको पेयरिंग कर सकते हैं या नहीं। हमें 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, 2 नंबर्स को ग्रुप में डालना है। वन थिंग, हम कभी भी अलग अलग फैक्टर्स को ग्रुप में नहीं डालेंगे, उनका पेयर नहीं बनाएंगे। हम जो पेयर बनाएंगे वो सेम नंबर्स का ही होना चाहिए।
जैसे हमने एक पेयर लिया 2 और 2 का, तो हमारा इन दो नंबर का पेयर बन गया। दूसरा पेयर बना लिया हमने इन दोनों 2 का, और तीसरा पेयर बना लिया हमने इन दोनों 3 का। तो हमने देखा यहाँ जो सारे ही फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में आ गए। यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बच रहा है जिसका पेयर हम नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे कि 144 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अंडरस्टूड? इस तरीके से हम चेक करते हैं कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए चेक करते हैं 180 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो जब हमने 180 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमें मिला 2, 2, 3, 3 एंड 5। अब हमने इन्हें ग्रुप में डिवाइड किया 2, 2 के ग्रुप में, तो एक पेयर बना 2 एंड 2 का, एक पेयर बना 3 का, एंड अब हमारे पास 5 का पेयर बनाने के लिए दूसरा 5 तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो हम इसको पेयर में तो ला ही नहीं सकते। ऐसा कोई नंबर भी नहीं है यहाँ पर, और हम खुद से कोई 5 भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे पता चल रहा है कि 180 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज हम उनके प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप में या पेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक जो 5 है वो लेफ्ट हो रहा था, इसलिए हमने कहा 180 is not a perfect square. So now we know how to check that the number is a perfect square or not. प्राइम फैक्टर्स करना हम जानते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है वो भी हम जानते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स होती हैं, एक हम आज पढ़ेंगे, एक हम बाद में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमें पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम कैसे फाइंड करते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, चलिए सीखते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आता है तो ये मेथड हमारे लिए बहुत इजी होने वाली है। एक एग्जांपल लिया है हमने, हम फाइंड करेंगे कि 676 का स्क्वायर रूट क्या है। So, square root of 676 will be written as under root 676. इसका मतलब ही ये होता है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम रिजॉल्व करेंगे इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में एज इन अगर आप नहीं जानते हैं कैसे निकालना है तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये मेथड को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कैसे? 2 से लेकर चलते हैं। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 3, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ये नंबर डिविजिबल है 13 से, बिकॉज 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 13 ओनली, 169। सो आपने देखा कि प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2, 2, 13 एंड 13। तो हमने लिखा अंडर रूट 676 को अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ये हमारा था स्टेप नंबर 1 कि जो भी नंबर है हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर देते हैं। अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग, जैसे हम अभी परफेक्ट स्क्वायर के केस में कर रहे थे। हमने इनकी पेयरिंग की तो एक ग्रुप फॉर्म हुआ 2 एंड 2 का, एक ग्रुप फॉर्म हुआ 13 एंड 13 का।
तो स्टेप नंबर 2 में हम कर रहे हैं जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रुपिंग, उनको हमने पेयर्स में अरेंज किया। थर्ड स्टेप कह रही है टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। ये जो दोनों ही या हमें जितने भी पेयर्स मिलेंगे उन सब पेयर में से हम एक फैक्टर ले लेंगे। जैसे 2 और 2 का एक पेयर था, तो ये जो एक पेयर है उसको हम सिर्फ 2 से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से 13 का एक पेयर था, तो इस पेयर को हमने सिर्फ 13 से डिनोट कर दिया। अब सिंपल हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो जब हमने 2 और 13 का प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमें मिला 26। सो इस तरीके से हमें पता चला कि 676 जो है वो स्क्वायर रूट है 26 का। सो वी विल राइट अंडर रूट 676 will be equals to 26। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने ये जो पेयरिंग यूज करी थी, हमने सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करनी है। उसमें हम कुछ थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये जो पेयर्स है इतने सारे, इनको इस तरीके से लिखने की बजाय हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। यहाँ पर जितने भी 2 थे 1 2 3 4, इसको हम एक्सपोनेंट वे में कैसे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4। एंड 7 जो था 2 टाइम्स था, इसलिए हमने उसे लिख दिया 7 टू द पावर 2। अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि हम पेयरिंग करने की बजाय उनको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ हम हर पेयर के लिए एक फैक्टर ले रहे थे। अगर आपको वो समझ में इजी पड़ता है तो आप वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें पावर्स में लिख के सिर्फ क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 थी तो हमने लिख दिया इसको हाफ करके, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, एंड 7 रेज़ टू द पावर 2 विल बिकम 7 रेज़ टू द पावर 1। तो अगर हम इनकी पावर को हाफ कर देते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रूट के बाहर आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करके हमें यहाँ पर मिला 28। सो वी कैन से अंडर रूट 784 विल बी इक्वल्स टू 28। मतलब 784 किसका स्क्वायर है, 28 का। यहाँ पर हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, वो है जैसे अंडर रूट 9 की वैल्यू तो 3 होती है, ये तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट 0.9 की वैल्यू 0.3 ही आए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 0.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.09। तो अंडर रूट 0.09 की वैल्यू होगी 0.3, ना कि अंडर रूट 0.3 की। ऐसा नहीं है कि 1 प्लेस पे डेसिमल है तो उसके जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें भी 1 प्लेस पर ही डेसिमल होगा। चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। इसी तरीके से 144 का अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 12 आता है, पर अंडर रूट 14.4 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 1.2 नहीं आता, क्योंकि अगर आप 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स सो विल गेट 1.44। सो 1.2 जो है वो स्क्वायर रूट होगा 1.44 का, ना कि 14.4 का। डेसिमल से वैल्यू चेंज हो जाती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
next point to keep in our mind that square root of a perfect square even number is always an even and square root of a perfect square odd number is always an odd number. Likewise, we have learned this also in these squares that the square of even number will be even number only and the square of odd number will be odd number only. So, similarly, we have the square root of a perfect square even number will be even number only and the square root of a perfect square odd number will be odd number only. So, you can check here, square root of 4 will be equals to 2, like 4 is an even number and we also know that 2 is an even number. तो किसी even number का square root अगर हम निकालें तो वो even number ही मिलेगा. आप देख सकते हैं इस सारे एग्जाम्पल में हमने even numbers ही लिए हैं और उनका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो भी even ही मिल रहा है. इसी तरीके से जब हमने ऑड नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला है तो वो ऑड नंबर ही आ रहे हैं. Understood? So this is all about square root. Now let's solve some example based on squares and square root. So here it is written as a man plants his orchard with 22,500 trees and arrange them so that there are as many rows as there are trees in each row. How many rows are there? हमें बोला गया है एक पर्सन है, एक मैन है, उसने एक गार्डन तैयार किया है जिसमें उसने 22,500 प्लांट्स लगाए हैं. अब उसे इन प्लांट्स को इस तरीके से लगाना है कि वो जितने नंबर ऑफ रोज लगाएगा उन हर एक रो में उतने नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, उतने नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए. तो हमें फाइंड करना है कि हर रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज या कितने नंबर ऑफ प्लांट आ रहे हैं या फिर कितने नंबर ऑफ रोज वहाँ पर बन रही हैं. तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लेट दी नंबर ऑफ रोज बी x. जो हमें फाइंड करना होता है वो हम सपोज कर लेते हैं. हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है x और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं हर नंबर ऑफ रो में उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ रोज x है तो नंबर ऑफ ट्रीज भी हो जाएंगे x. अब अगर हमें फाइंड करना है कि टोटल प्लांट्स कितने हैं या टोटल ट्रीज कितने हैं तो हम जानते हैं अगर हम इन दोनों नंबर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल प्लांट्स की वैल्यू मिल जाएगी. नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. यही लिखा. और हम अब जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फाइंड कर रहे होते हैं उसका स्क्वायर. तो हम उसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब हमें दिया गया था कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22,500. मतलब x स्क्वायर की जो वैल्यू है अब वो है 22,500. अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे. कैसे करेंगे? जैसे एडिशन ट्रांसपोज होके सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज होके डिवीजन हो जाता है, उसी तरीके से अगर आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है उसके अपोजिट चीज़ में विच इज़ स्क्वायर रूट. अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ पर यही किया क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर इस साइड RHS लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसे हमने RHS साइड पे भेजा तो वो कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट में. स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं हम जानते हैं. हम कर निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना. सो वी हैव कन्वर्टेड द 22,500 इनटू देयर prime factors. Now we are going to sum up or group them together in a pair. So we got this pair, one pair, second pair, third pair, fourth pair. Now all the factors are grouped together in a pair. So we can say that
22,500 is a perfect square number, right? So आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम हर पेयर में से एक फैक्टर ले लेंगे। वो क्या लिया हमने? जैसे यहाँ पर लिया 5, अगेन यहाँ पर हमने लिया 5, यहाँ पर हमने लिया 3 और यहाँ पर हमने लिया 2। अगर हम इन सबको सॉल्व कर दे रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 150। इस तरीके से हमें जो नंबर ऑफ रोज मिली वो मिली 150। So now we know how to solve the square root and squares in the word problems. Let's check one more example based on all these things. So in a basket there are 50 flowers. A man goes to worship and put as many flowers in each temple as there are temples in the city. Thus, he needs 8 baskets of flowers. Find the number of temples in the city. So now we got an idea how to solve this condition, right? Let's check the solution. So here we have, so to find the number of temples in the city, we have supposed that let the number of temples in the city be x. जो फाइंड करना था वो हमने सपोज कर लिया। क्वेश्चन में लिखा था कि वो जितने टेम्पल्स जा रहा है उतने ही वो नंबर ऑफ फ्लावर्स वहाँ पे कर रहा है, पुट कर रहा है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्लावर्स पुट इन ईच टेम्पल विल बी इक्वल्स टू एक्स ओनली बिकॉज द नंबर ऑफ टेम्पल्स विल बी एक्स. So now we can write it as the total number of flowers used is equals to x square. x square क्यों आया? अब आप जानते हैं क्योंकि हम दोनों ही x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए अब हम उसे डायरेक्टली x रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं. According to the given statement we have x square is equals to 50 multiplied by 8. ये हमारे क्वेश्चन से ही हमें मिला है. अब क्या करना है? सिंपली हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है. तो अभी हमने सीखा था कि स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे LHS से RHS ले जाकर. तो हमने यहाँ पर वही किया, हमने स्क्वायर को यहाँ साइड शिफ्ट किया तो ये जो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 था ये हमें अब अंडर रूट में मिल गया. अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हटाएंगे? हम फाइंड करेंगे इन नंबर्स के पेयर्स. अब हमने यहाँ पर इन्हें पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हम इन्हें मल्टीप्लाई करके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते थे. यस, हम वैसा भी कर सकते थे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू बड़ी हो जाती, फिर हमें उस बड़ी सी वैल्यू के फैक्टर्स निकालने पड़ते. उससे ज़्यादा बेटर है कि हम इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालें, क्योंकि एट द एंड हमें इन्हें कन्वर्ट तो फैक्टर्स में ही करना है. सो हमने यही किया, 50 के फैक्टर निकाले तो हमें मिल गया कुछ फैक्टर्स मिले, हमने डायरेक्टली इन्हें अरेंज करके लिखा है. तो जब हमने इनके सारे फैक्टर्स निकाले और उन्हें अरेंज किया और उन्हें पेयर में ग्रुप किया तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेयरिंग मिली. बिकॉज वी नो जब हम 50 के फैक्टर निकालेंगे तो वो आएंगे 5, 5 एंड 2, और जब 8 के फैक्टर निकालेंगे तो वो आएंगे 2, 2 एंड 2. अब ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम सिर्फ 50 के पेयर्स बनाएंगे फैक्टर्स के, या फिर हम 8 के फैक्टर्स के पेयर अलग से बनाएंगे. ये दोनों ही एक ही अंडर रूट के नीचे लिखे हुए हैं, इसीलिए हम इन सबको ही साथ में पेयरिंग करेंगे. जैसे हमने 5 और 5 को ले लिया, 2 और 2 को ले लिया, एंड अगेन हमने 2 और 2 की पेयरिंग कर दी. अब जैसा कि हम सीख चुके हैं, हम इन सब पेयर में से एक एक फैक्टर ले लेंगे. तो यहाँ हमने ले लिया 5, इसमें से हमने लिया एक 2 और इसमें से हमने लिया एक 2. अब सिंपली हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिली 20. सो वी गॉट आवर आंसर हियर. सो द नंबर ऑफ टेम्पल इन दिस सिटी will be equals to 20. Now you know how to solve all these type of
questions using the steps we have learned to find the square root or the square of any number. Let's see this question. Now in this question we need to find the smallest perfect square number which is divisible by 8 and 12. ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो, एंड वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं अगर हमें कोई एक नंबर चाहिए जो दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो और लोएस्ट टर्म में हो, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले उन दोनों नंबर का LCM. तो हमने यहाँ पर वही किया. हम जानते हैं कि 8 और 12 से कोई नंबर अगर डिविजिबल होगा तो वो उसका LCM होगा. तो सबसे पहले हमने इसका LCM फाइंड किया और हमें मिला 8 और 12 का LCM 24. LCM कैसे फाइंड करना है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. LCM फाइंड में मिला हमें 24 और 24 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने निकाल लिए हैं 24 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स. To make it a perfect square, it must be multiplied by 2 and 3. Why it is written here as to make it a perfect square, it must be multiplied by 2 and 3? Because we know that at this time it is not a perfect square because we are not getting pairs. We are left with 1, 2 and 1, 3. So to make them pair, we need to multiply this with 1, 2 and 1, 3. So for making it a perfect square, we are multiplying the value with a 2 and a 3. So by doing this, we got the number as 144. क्योंकि यहाँ पर हम पेयरिंग नहीं कर पा रहे थे, हम 2 और 3 को साथ में पेयर नहीं कर सकते थे, सेम फैक्टर्स होना चाहिए, हमने सीखा था. अब जब हमें यहाँ पर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ही ऐसी थी कि हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना था. तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें एक 2 चाहिए और इस 3 के लिए हमें एक 3 और चाहिए. इसीलिए हमने 24 में एक 2 और एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमें मिला 144, which is the answer, which is the smallest perfect square number which can be divisible by both 8 and 12. Understood how to solve these type of questions? First we will find the LCM, then we need to convert it into a perfect square number. So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come? So for this you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.